ہمارے چینل خوفناک ٹیلز میں خوش آمدید۔ یہاں آپ ہماری خوفناک بھوتوں کی کہانیوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبانا نہ بھولیں۔ آئیے آج کی خوفناک کہانی شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہی جیک ایڈی ریپر ریولڈس نے بین الاقوامی باکسنگ ٹورنامنٹ میں قدم رکھا، وہ جانتا تھا کہ کچھ بند ہے۔ ہوا ایک خوفناک توانائی کے ساتھ موٹی تھی اور سائے جاندار چیزوں کی طرح مرجھا رہے تھے۔ لیکن جیک ایک فائٹر تھا اور وہ چیمپئن شپ ٹائٹل پر اپنے شاٹ کے راستے میں تھوڑا سا خوف آنے نہیں دے رہا تھا۔ جب اس نے اپنے پہلے میچ کے لیے رنگ میں اپنا راستہ بنایا تو اس نے دیکھا کہ دیواروں میں عجیب و غریب علامتیں بنی ہوئی ہیں جو کہ ایک ناپاک چمک کے ساتھ چل رہی ہے۔ دوسرے جنگجو خوفناک ماحول سے غافل دکھائی دے رہے تھے، لیکن جیک کی جبلت نے اس پر چیخ ماری کہ وہ باہر نکل جائے جب تک وہ اب بھی کر سکتا تھا۔ لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ جیسے ہی گھنٹی بجی، میچ کے آغاز کا اشارہ دیتے ہوئے جیک کا حریف بدلنے لگا۔ اس کی آنکھیں کوئلے کی طرح کالی ہو گئیں اور اس کی جلد اس کی کھوپڑی پر ڈھول کے سر کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ جیک کا دل دھڑک اٹھا جب اسے احساس ہوا کہ وہ ایک بھوت سے لڑ رہا ہے، ایک انتقامی جذبہ جو رنگ میں پھنسا ہوا ہے۔ میچ پسینے اور دہشت کا ایک دھندلا ہوا تھا۔ جیک بمشکل اپنے قدموں کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہا کیونکہ بھوت مخالف نے مافوق الفطرت ضربیں لگا دیں۔ لیکن جیک نے ہار ماننے سے انکار کر دیا، زندہ رہنے کے شدید عزم کی وجہ سے۔ جیسے جیسے ٹورنامنٹ آگے بڑھا، جیک کو خوفناک مخالفین کی ایک صف کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک شیطانی ہستی جس میں اس طرح تیز پنجے تھے، ایک ایسا باکسر جس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کے شعلے بنتے تھے، اور یہاں تک کہ خود کا ایک بھوت والا ورژن جو اسے اندر سے تباہ کرنے کے لیے پرعزم تھا۔ لیکن جیک کا سب سے بڑا چیلنج ٹورنامنٹ کے پراسرار پروموٹر کی شکل میں سامنے آیا، ایک ایسی بدصورت شخصیت جس کی آنکھیں گرم کوئلوں کی طرح جل رہی تھیں۔ اس نے جیک کے سامنے انکشاف کیا کہ یہ ٹورنامنٹ ایک رسم تھی، ایک قدیم دیوتا کے لیے قربانی تھی جو جنگجوؤں کے خوف اور تکالیف کو برداشت کرتی تھی۔ رنگ سے فرار کے بغیر جیک کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنی روح کے تاریک ترین گوشوں کا سامنا کرے اور ان ہولناکیوں کا سامنا کرے جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ کا وہ جیت کر ابھرے گا، اب وہ باکسنگ رنگ آف دی ڈیمن میں اگلی قربانی بن جائے گا۔ جیسے ہی جیک لڑتا رہا، اس نے دریافت کیا کہ ٹورنامنٹ محض ایک گہرے مقصد کے لیے ایک اگوڑا تھا۔ پروموٹر کا حقیقی ارادہ جنگجوؤں کے خوف اور مصائب کو استعمال کرتے ہوئے ایک قدیم ہستی کو طلب کرنا تھا جو کہ ناقابل بیان ہولناکی ہے، جس نے ملعونوں کی روحوں کو پالا تھا۔ ہر میچ کے ساتھ جیک نے محسوس کیا کہ خود کو پاتال کے قریب آتا جا رہا ہے۔ اس کی اپنی روح آہستہ آہستہ کھل رہی ہے کیونکہ اسے رنگ میں ناقابل بیان دہشت کا سامنا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے بچنا ہے، لیکن پروموٹر کی گرفت بہت مضبوط تھی اور ہستی کا اثر بہت زیادہ تھا۔ آزاد ہونے کی مایوسی کی کوشش میں جیک ایک غیر متوقع اتحادی کی طرف متوجہ ہوا، اپنے پہلے میچ سے ہی بھوت مخالف۔ ایک ساتھ انہوں نے پروموٹر کو معزول کرنے اور ٹورنامنٹ کو پابند کرنے والے لعنت کو توڑ دینے کا منصوبہ بنایا۔ لیکن جب وہ اپنی صفوں سے لڑ رہے تھے تو انہوں نے محسوس کیا کہ اس ہستی کا اثر و رسوخ اس سے کہیں زیادہ کپٹی ہے جتنا انہوں نے سوچا تھا۔ اس نے پہلے ہی دوسرے جنگجوؤں کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا، انہیں بے عقل زومبی نما مخلوقات میں تبدیل کر دیا تھا جس میں انسانی گوشت کی بھوک تھی۔ وقت ختم ہونے کے ساتھ جیک اور اس کے بھوت دوست کا مقابلہ پروموٹر کے خلاف فائنل اپاکلپٹک شو ڈاؤن میں ہوا۔ ان کی روحوں کی قسمت اور تمام جنگجوؤں کی روحیں توازن میں لٹکی ہوئی تھیں۔ کیا وہ فتح یاب ہو کر ابھریں گے؟ اب وہ ان ہولناکیوں کا شکار ہو جائیں گے جو سائے میں چھپے ہوئے ہمیشہ کے لیے لعنتی کے باکسنگ رنگ میں پھنس گئے۔ جیسے ہی فائنل میچ شروع ہوا، جیک اور اس کے بھوتنی ساتھی کا مقابلہ پروموٹر اور اس کے منینس سے ہوا۔ مہلک توانائی کے ساتھ موٹی تھی اور انگوٹھی کسی دوسری دنیاوی طاقت کے ساتھ نبض کرتی نظر آتی تھی۔ لیکن جیسے ہی لڑائی تیز ہو رہی تھی، اچانک روشنی کے پھٹنے نے میدان کو روشن کر دیا اور رنگ میں ایک شخصیت نمودار ہوئی۔ یہ ایک پراسرار عورت تھی، اس کی آنکھیں شدید عزم کے ساتھ جل رہی تھیں۔ میں آپ کو ہستی کو بلانے نہیں دوں گا، اس نے اعلان کیا۔ اس کی آواز پورے میدان میں گونج رہی تھی۔ میں تمہیں ان روحوں پر لعنت نہیں کرنے دوں گا۔
प्रोमोटर ने इस पर तंज किया, लेकिन वो लंबा खड़ा था, इसकी मौजूदगी कमांडिंग और ताकतवर थी। और फिर एक ऐसी हरकत जिसने सबको चौंका दिया, वो लड़ने लगी। इसकी हरकतें तेज और जानलेवा थीं, जो आसानी के साथ मनीनस को नीचे ले जाती थीं। जैक और उसके इत्तेहादी ने हैरत से देखा जब वो सफों से लड़ रही थी, हर फतह के साथ इसकी ताकत बढ़ रही थी। और फिर एक हतमी कलीनटुक शोडाउन में इसका सामना खुद प्रोमोटर के खिलाफ हुआ। नतीजा यकीनी से बहुत दूर था, लेकिन एक चीज वाज़े थी, इनमें से सिर्फ एक ही फतह हासिल करेगा। टूर्नामेंट की किस्मत और तमाम जंगजुओं की रूहें तवाज़ुन में लटक गईं। क्या पुरस्कार औरत प्रोमोटर को शिकस्त देने और लानत को बिखरने में कामयाब हो जाएगी? क्या लनती के बॉक्सिंग रंग की हौलनाकियां उन सब को खा जाएंगी? पुरस्कार खातून की जीत मुख्तसर वक्त के लिए थी, क्योंकि उसे जल्द ही एहसास हो गया कि प्रोमोटर एक बहुत ज्यादा खौफनाक कुव्वत के लिए महज एक कठपुतली, एक सियाह और कदीम देवता जिसे सिर्फ दी डोवरर कहा जाता है, टूर्नामेंट के सिया जादू से बेदार हो गया था। डोवरर की मौजूदगी को पूरे मैदान में महसूस किया गया। इसकी मोहलिक तवानाई खुद ही हकीकत को तबाह कर रही है। पुरस्कार औरत जानती थी कि उसे देवता के ज़हूर को रोकने के लिए तेजी से काम करना होगा। जैक और उसके साथ इसके भूत साथी के साथ उसने एक कदीम नमूने के टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए एक खतरनाक सफर का आगाज किया। ये वाहिद हथियार जो दी डिवोर को शिकस्त देने के काबिल। उनकी जस्तजू उन्हें गद्दार मनाजिर और खौफनाक दायरों में ले गई, जहां उन्हें नाकाबिल बयान हौलनाकियों का सामना करना पड़ा और नाकाबिल तसव्वुर चैलेंजों पर काबू पाया। लेकिन जो वो अपने मकसद के करीब आते गए, उन्होंने महसूस किया कि दी डोवरर का असर और रसूख फैल रहा है, हकीकत के ताने बाने को खराब कर रहा है। वक्त खत्म हो रहा था और दुनिया की तकदीर तवाज़ुन में लटक रही थी। क्या वो फन पारे को इकट्ठा करने और दीवुरर को शिकस्त देने के काबिल हो जाएंगे? अंधेरे उन सब को खा जाएंगे, दुनिया को खौफ के अबदी खाई में डूब जाएगा। नतीजा यकीनी से बहुत दूर था, क्योंकि बका की जंग अपने उरूज पर पहुंच गई। जैसा कि पुरस्कार औरत, जैक और उसके भूत साथी ने आखिरकार इस फनपारे को इकट्ठा किया, उनकी मुलाकात एक खौफनाक मंजर से हुई। दी डोवरर मुकम्मल तौर पर जाहिर हो चुका था। इसकी मौजूदगी मैदान को एक गंभीर डरावने ख्वाब के दायरे में तब्दील कर रही थी। देवता की ताकत बहुत ज्यादा थी और तीनों को मालूम था कि उन्हें तेजी से काम करना है। पुरस्कार औरत ने आर्टिफैक्ट को पकड़ लिया, अपनी तवानाई को खालिस रोशनी के धमाके में बदल दिया, जिसने दी डोवरर को नाकाबिल यकीन ताकत से मारा। देवता ने एक बहरा कर देने वाली चीख निकाली जब वो पीछे की तरफ ठोकर खाता था। मैदान पर इसका असर कम होता जा रहा था। तीनों ने बहाली का फायदा उठाया, एक शदीद हमला किया जिसने दी डोवरर को मजीद पीछे धकेल दिया। लेकिन जैसा कि उन्होंने सोचा कि उनका हाथ ऊपर है, दी डोवरर ने तबाहकुन जवाबी हमला किया, जिससे तीनों को मैदान में उड़ते हुए भेज दिया। जब वो अपने पैरों पर वापस जाने के लिए जिदोजहद कर रहे थे, तो उन्हें एहसास हुआ कि दी डोवरर की ताकत दूसरी तरफ बढ़ रही है। पुरस्कार औरत जानती थी कि उनकी वाहिद उम्मीद एक पुरखतर मंसूबे में है, अपनी रूहों को एक वाहिद ताकतवर हस्ती में जम करने के लिए नमूने का इस्तेमाल करना। ये एक खतरनाक इक़दाम था, लेकिन ये सिर्फ एक बार और हमेशा के लिए दी डोवरर को शिकस्त देने के लिए काफी है। कोई और ऑप्शन बाकी ना बचा। तीनों ने इस मंसूबे पर इत्तिफाक किया। पुरस्कार औरत ने फनपारे को उठाया और एक अंधी रोशनी ने उन्हें लपेट में ले लिया। उनकी रूहें एक वाहिद चमकती हुई हस्ती में जम हो गईं। दुनिया की किस्मत इस फाइनल पर टिकी हुई थी, जीत के लिए बेचैन बोली थी। जमशदा हस्ती, जो अब खालिस तवानाई का हामिल है, का सामना द डिवोरर के खिलाफ है। रोशनी और आवाज के शानदार नुमाइश में दोनों ताकतें आपस में टकरा गईं। उनकी तवानाइयां ऐसी जिदोजहद में बंद थीं जो हकीकत की बुनियादों को हिला देती थीं। जैसे ही जंग शुरू हुई, मैदान तहलील होना शुरू हो गया, जिससे परे एक पोशीदा दायरे का इंकिशाफ हुआ। हस्ती और दीवुरर इस दायरे में खींचे गए। उनका तनाज़ा इंसानी समझ से बाहर एक जिहत में जारी है। जंग का नतीजा यकीनी नहीं था, लेकिन एक चीज वाज़े थी, उन ताकतों में से सिर्फ एक ही फतह हासिल कर सकती थी। दुनिया की तकदीर और उन सब की रूहें जिन्हें दी डोवरर ने खाया था, तवाज़ुन में लटका हुआ था। आखिर में ये वो हस्ती थी जो फाते बनकर उभरी। इसकी ताकत ने दीवुरर को मगलूब कर दिया और इसे वापस अंडरवर्ल्ड की गहराइयों तक पहुंचा दिया। दायरा सेहतमंद होना शुरू हुआ
और मालूनों की रूहें आखिरकार आजाद हुईं। लेकिन जो हस्ती मुंतशिर होने लगी, इसकी तवानाई दुनिया में लूट आई। एक अजीब सी चमक बाकी रह गई। पुरस्रार औरत, जैक और उसके भूत साथी ने खुद को मैदान में वापस पाया। उनकी रूहें उनके जिस्मों में वापस आ गईं। वो जानते थे कि वो अपने तजुर्बे से हमेशा के लिए बदल गए थे और ये कि उनकी जिंदगी फिर कभी पहले जैसी नहीं होगी, और इस तरह वो मैदान से दूर चले गए, एक नई सुबह की तरफ। हमेशा के लिए इन हौलनाकियों से परेशान हो गए जिनका सामना उन्होंने डीमंड के बॉक्सिंग रंग में किया था। जब वो मैदान से निकले तो उन्होंने देखा कि एक अजीब सी शख्सियत उन्हें साए से देख रही है। ये लंबे चांदी के बालों और आंखों वाली एक औरत थी जो उनमें से नजर आती थी। हो सकता है अपने दी डोवरर को शिकस्त दी हो। उसने अपनी आवाज धीमी और पुरस्रार अंदाज में कहा, लेकिन हकीकी खौफ तो अभी शुरू हुआ है। और उसके साथ वो पुतली हवा में गायब हो गई और उनके पास जवाबात से ज्यादा सवालात छोड़ गए। वो जानते थे कि उन्हें मालूम करना है कि इसका क्या मतलब है, और इसलिए वो एक नए सफर पर रवाना हुए जो उन्हें जमीन के तारीक तरीन कोनों और इससे बाहर ले जाएगा। उन्हें अजीब और गरीब फिरकों, कदीम देवताओं और खौफनाकियों का सामना करना पड़ा जो उनके तसव्वुर से बाहर थीं। लेकिन इस सब के जरिए वो जानते थे कि वो एक दूसरे के साथ हैं, और ये कि एक साथ वो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी दहशत का सामना कर सकते हैं। आखिर में उन्होंने दरियाफ्त किया कि हकीकी खौफ कोई इफरीत आभूत नहीं था, बल्कि वो अंधेरा था जो अपने अंदर छुपा हुआ था, और इस अंधेरे का सामना करके ही वो फतह याब होने में कामयाब हुए। उनकी रूहें हमेशा के लिए इन हौलनाकियों से बदल गईं जिनका उन्होंने सामना किया था। जैसे ही वो असरार की गहराई में उतरते गए, उन्होंने एक खौफनाक साजिश का पर्दाफाश किया जिससे इनके तसव्वुर से बाहर एक आलमी खौफ को जन्म दिया गया। एक खुफिया मुआशरा जो साफ नजरों में छुपा हुआ था, तबाकुन हिसाब किताब लाने के लिए आलमी वाकयात में हीरा फेरी कर रहा था। वक्त खत्म होने के साथ वो आने वाले अजाब को रोकने के लिए घड़ी के खिलाफ दौड़े। टोक्यो की सड़कों से लेकर पेरिस के कीटाकोम्बस तक उन्होंने मुआशरे के मुंशियों के खिलाफ जंग लड़ी और नाकाबिल बयान हौलनाकियों का सामना किया। लेकिन जो आखिरी मुकाबला करीब आया, उन्होंने महसूस किया कि हकीकी दुश्मन मुआशरा नहीं बल्कि इससे कहीं ज्यादा कदीम और बदकिरदार ताकत है। खालिस अंधेरे का एक वजूद जिसे सिर्फ दी आर्किटेक्ट के नाम से जाना जाता है, साए से वाकयात को जोड़ रहा था। इंसानियत की तकदीर तवाज़ुन में लटकी हुई थी, क्योंकि वो एक ऐसी जंग में मेमार का मुकाबला करने के लिए तैयार थे जो तारीख का रुख तय करेगी। क्या वो अपने खौफ पर काबू पाने और हतमी होलनाकी को शिकस्त देने के लिए मिलकर काम करने में कामयाब हो जाएंगे, और दुनिया इस अंधेरे का शिकार हो जाएगी जिसने इसे सदियों से सताया था। आखिर में ये काफी नहीं था। उनकी बहादुरी के बावजूद तीनों आर्किटेक्ट की जबरदस्त ताकत से गिर गए। जैसे जैसे दुनिया उनके गिर्द जल रही थी, उन्हें एहसास हुआ कि उनकी किस्मत पर मेहर लग गई है। पुरस्रार औरत के आखिरी अल्फाज मायूसी की सरगोशी थे, हमें अंधेरे में रहना चाहिए था। जैक का आखिरी ख्याल इसके खानदान का था, हमेशा के लिए इससे खो गया। भूत के इत्तेहादी की आखिरी चीख को बातिल ने खामोश कर दिया, जैसा कि आर्किटेक्ट ने उनकी रूहें खा ले, और इस तरह दुनिया अंधेरे में डूब गई। हमेशा के लिए दी आर्किटेक्ट के डिजाइन की पाताल में फंस गई। बॉक्सिंग रंग ऑफ दी डीमन महज एक निशान बन गया, उन हौलनाकियों की याद दहानी जो रूनुमा हुई थी। आखिर में सिर्फ अंधेरा था और लानत की अबदी खामोशी।